जस्टिस स्वामीनाथन के फैसले से तिलमिलाया तमिलनाडु वक्फ बोर्ड। तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने मद्रास हाई कोर्ट में दायर की याचिका। वक्फ बोर्ड की याचिका में बड़ा दावा दीपम स्तंभ दरगाह का है। मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस स्वामीनाथन ने थिरुपरनकुंद्रम हिल पर दीपथून पर दीपक जलाने की परमिशन देने वाला जो फैसला सुनाया, उनका ये फैसला काफी ज्यादा सुर्खियों में है। विपक्ष उनके इस फैसले का विरोध कर रहा है, तो अब जस्टिस स्वामीनाथन के इस फैसले के खिलाफ तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने मद्रास हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जी हां, मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर की है तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने, जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि दीपम स्तंभ दरगाह का है। ये जो पूरा मामला है, ये थिरुपरनकुंद्रम मुरुगन मंदिर और पास की दरगाह के बीच का ये पूरा मैटर है, जिसको लेकर जस्टिस स्वामीनाथन का फैसला काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर कार्तिकेय दीपम विवाद को लेकर मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। बोर्ड का कहना है कि यह पहाड़ी वक्फ भूमि है और अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी भूमि का उपयोग करने में कठिनाई हो रही है। वक्फ बोर्ड ने प्राचीन दीपाथून स्तंभ पर दीपक जलाने के आदेश को चुनौती अब मद्रास हाई कोर्ट में दी है। अब इस मामले पर सुनवाई जो है न्यायमूर्ति जी जयचंद्रन और न्यायमूर्ति के रामकृष्ण की पीठ करेगी। अब देखना होगा कि क्या फैसला तमिलनाडु वक्फ बोर्ड की इस याचिका पर आएगा। मद्रास हाई कोर्ट ने दीपथून पर दीप जलाने का आदेश दिया था। यह जस्टिस स्वामीनाथन का फैसला था, लेकिन प्रशासन ने परंपरा बदलने की कोशिश की और यहीं से यह पूरा विवाद शुरू हुआ। अब इसको लेकर एक लंबी कहीं ना कहीं जो जंग है वो अब शुरू हो गई है। जहां तक ये पूरा मैटर है, लगातार मैंने आपको जानकारी दी है कि कहां से ये पूरा विवाद शुरू हुआ, किस तरीके से जस्टिस स्वामीनाथन के फैसले पर जहां बीजेपी समेत जो पूर्व जज हैं, जस्टिस हैं, वो उनके समर्थन में आकर खड़े हो गए हैं और उनके फैसले को सही बता रहे हैं। लेकिन वहीं पर विपक्ष जो है वो जस्टिस स्वामीनाथन को उनकी कुर्सी से हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लेकर आ चुका है। लेकिन इस मामले को लेकर जो सुधाकर रेड्डी हैं, बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने क्या कहा है, जरा सुनिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, द DMK mindset, their modus operandi is like this. Same, they want to create one narrative to escape, to divert their misdeeds, failures and misrule of the Tamil Nadu as a government which is in power. The people of Tamil Nadu, Makkal people, are they are facing their many hardships and disgusted. To divert this, they want some other issue. They are creating all these type of things, malicious propaganda, misinformation propaganda. Law of land is there. Court's verdicts are there. You have to implement as a authority of the government, to implement with true letter and spirit. Even they are targeting the honorable judges. How they got the signatures, everybody know. Honorable Home Minister already exposed their malified intention. One judge is a honest judge, I think. I read about it. So many cases has been disposed of. He is the symbol of some integrity or whatever. They are least bothered about judgment, targeting the judge impeachment. It is the most undemocratic. It is a high-handed behavior of the government by targeting honorable judges. That is, first of all, I want to condemn the attitude of the DMK government led by Stalinji. The other thing, majority people, whoever, any religion, Constitution, Ambedkar ji given Constitution as a given right to believe, right to respect, right to faith. And Thiruparamkundram top of hill, the Jyoti is a traditional thing, Sanatana, so many years. They are saying this is a survey stone, this is other stone. They want to divert the attention. The sentiments of the crores of the people should be honored, number one. It is the people's court.
somehow something they want to divert the thing. That is the reason the demonstration is on. They are not least bothered about judgments. They are not implementing the thing, and they are hurting the lakhs and crores of people of particular religion, Hindus and others. Sanatana aspects are coming. They are only aiming on vote bank politics. Nothing like that. Ekasutra Padakam. That is a single point program. DMK and also Congress party. Like vote chore, vote chore. Rahul Gandhi already walked out. He has not given a reply in Lok Sabha to our Honorable Home Minister's speech. And this is a mandatory, this is a cleansing of the voter list. SIR also. Like that in every issue, they want to create a misinformation campaign. All India alliances, including in Bengal, this DMK here, Congress in some other states, even in Karnataka, like that, their mindset is like that. People will give befitting reply for all this, whatever misconduct and anti-people policies and disrespect of the constitutional spirit. तो अगर विस्तार से मैं आपको ये पूरा मामला समझाऊं तो जैसा कि मैंने कहा कि थिरुपरनकुंद्रम जो कि मुदेरू के पास की पहाड़ी है, यहाँ प्राचीन थिरुपरनकुंद्रम मुरुगन मंदिर है और उसी पहाड़ी पर ऊपर एक छोटी दरगाह भी है जिसे सिकंदर शाही दरगाह कहा जाता है। ये विवाद का मुख्य मुद्दा हर साल कार्तिकेय दीपम पर हिंदू भक्त पहाड़ी पर एक प्राचीन पत्थर का खंबा है जिसे दीपथून कहते हैं और उस पर दीपक जलाते हैं हिंदू। ये परंपरा सैकड़ों साल पुरानी है, लेकिन पिछले कुछ सालों में कुछ मुस्लिम संगठन और दरगाह प्रबंधन का दावा है कि पूरी पहाड़ी वक्फ संपत्ति है। दीपक जलाने से दरगाह की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। हिंदू भक्तों का ऊपर जाना और दीपक जलाना अतिक्रमण है, ये आरोप लगते रहे। इसलिए उन्होंने 2024-25 में दीपक जलाने पर रोक लगाने की मांग की और तमिलनाडु सरकार से परमिशन न देने को कहा, जिसके बाद दरअसल 2025 में तमिलनाडु सरकार ने पहले दीपक जलाने की परमिशन देने से इनकार कर दिया था। वक्फ बोर्ड और कुछ मुस्लिम संगठनों के दबाव में स्टालिन की सरकार वहां पर है। हिंदू संगठनों ने इसके खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर की। जस्टिस GR स्वामीनाथन का ऐतिहासिक फैसला 1 दिसंबर 2025 को सामने आया, जब उन्होंने ये कहा कि ये दीपक जलाने की परंपरा तमिल हिंदू संस्कृति की गहरी जड़ों वाली परंपरा है, न केवल धार्मिक अनुष्ठान। दीपथून यानी पत्थर का खंबा मंदिर की संपत्ति है, दरगाह का नहीं। दीपक जलाना शांति और प्रकाश का प्रतीक है, ये किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकता। सरकार को दीपक जलाने की परमिशन देने का आदेश दिया। वक्फ बोर्ड के दावे को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ वक्फ की सूची में नाम होना से पूरी पहाड़ी वक्फ संपत्ति नहीं हो जाती। ये बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई। DMK की स्टालिन सरकार ने वहां पर उनके इस फैसले का विरोध किया और उसके बाद इस तरीके से यह मामला एक बार फिर से कोर्ट पहुंच चुका है। अब तमिलनाडु वक्फ बोर्ड की इस याचिका पर क्या फैसला मद्रास हाई कोर्ट का रहेगा, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।